ओके जी, द सेल्फ असेसमेंट लाइब्रेरी इज डिस्प्लेड टू यू, और इस लाइब्रेरी में आई एम क्लिकिंग ऑन व्हाट अबाउट मी. व्हाट अबाउट मी में the first investigation we can have related to yourself is talking about personality insight. And if I click on personality insight, it is giving me the options that what's my basic personality, what's my MBTI personality type, Myers-Briggs type indicator, what's my locus of control, how flexible am I, how proactive am I a type A or type B, how well do I handle ambiguity, how creative am I. इन तमाम चीजों को हम इन्वेस्टिगेट इन पर्सनैलिटी इनसाइट वो कर सकते हैं. उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट लाइब्रेरी में कैपेबिलिटी है वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को मेजर करने की, मोटिवेशन इनसाइट को मेजर करने की, डिसीजन मेकिंग को मेजर करने की, इसी तरह वर्किंग विद अदर्स, लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशंस. जो तीनों लेवल्स हमारे पास हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल, इन सब की इन्वेस्टिगेशंस वो हम कर सकते हैं, सेल्फ के लिए भी और दूसरों के लिए भी. नाउ फोकसिंग अपॉन व्हाट्स माय बेसिक पर्सनैलिटी, आई क्लिक ऑन इट और ये मेरे पास एक टेस्ट वो ओपन हो जाता है. इस टेस्ट में उसामा वुड बी हेल्पिंग अस टू फिल दिस टेस्ट, और हम ये डिसाइड करेंगे कि उसामा की जो पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट उसके डिफरेंट वेरिएबल एस्पेक्ट्स वो कैसे हैं. सो फॉर दैट मैटर, उसामा, इफ इट इज विजिबल टू यू, आई वुड लाइक यू टू टेल मी द पॉइंट अपॉन विच आई शुड बी मार्किंग. देयर इज द फर्स्ट पॉइंट that either you are quiet or talkative, ranges from 1 to 5. Where should I take? 4, sir. Okay, the second am I audible to you? Please. Am I audible to you? Yeah, you are comfortably audible to me. The second point is that in between tolerant and critical, where should I tick? 5, critical. Disorganized and organized. 2. Tense and calm. 3. Imaginative and conventional. 2. Reserved and outgoing. 4. Uncooperative and cooperative. 4. Unreliable and dependable. Aren't they two exactly opposite? Unreliable and dependable. And like 4. Okay, insecure and secure. 5. New and familiar. 2. Sociable and loner. 2. Suspicious or trusting. 3. Undirected and goal oriented. 2. Enthusiastic or depressed. 1. Change oriented or suffering from status quo. 1. Thank you very much, Usama. You can turn off your microphone. All right. After having a discussion with Usama, he has given us these insights into his personality. And if I press on calculate, this is the result shown to me. And in this particular context, the points upon which I have just ticked, the extraversion score is 12 out of 15. Agreeableness score is 8 out of 15. Conscientiousness score is 8 out of 15. Emotional stability is 13 out of 15. And openness to experience is 13 out of 15. Okay, so these are the numbers with which I'm able to analyze that what type of personality Usama is having, or uski sari interpretation in terms of extraversion, someone who is sociable; in terms of agreeableness, someone who is good natured; in terms of conscientiousness, someone who is responsible; in terms of emotional stability, someone who is calm; in terms of the other variables, ye sari list mere paas wo aa gayi. Now, if I say the most impressive evidence related to the conscientiousness dimension, ठीक है, सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास conscientiousness को वो समझना है. If the screen is not visible, तो I'll be posting you its screenshot afterwards.
मेरे पास डिस्प्ले के ऊपर जो स्क्रीन आ रही है, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दैट विद यू. All right, is it visible now? Is the screen visible now of the scoring? Okay, that is the screen which I was available with. Because it was open in another browser window, that was the reason it was not visible. So यहाँ पर अब मैं देख रहा हूं कि जो इन पॉइंट्स पर मैंने टिक किया तो कौन से मेरे पास फैक्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये सब के सब आउट ऑफ 15 हैं. सो जितना आप 15 के क्लोजर जाते जाओगे उतना आपका ये जो फैक्टर्स हैं ये strong होते जाएंगे. Extraversion is 12, agreeableness is 8, consensuousness is 8, emotional stability is 13, openness to experience is 13. Okay? अब ये हमने एक पर्सनैलिटी का असेसमेंट कर लिया, फाइन. अब हम देखते हैं कि इस असेसमेंट का ताल्लुक क्या बनता है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में जब हम लोगों को ह्यूमन इनपुट स्टेज पर काउंट कर रहे हैं. अब उस मकसद के लिए मैं यहां पर ये वाला स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं एंड आई एम कमिंग बैक टू माय स्लाइड्स and I hope the slides are now visible to you. और अभी हमने एक पर्सनैलिटी टेस्ट पूरा कंडक्ट किया. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेंसुअसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ये सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप अपनी असेसमेंट से लेकर अपने तमाम गिरदोनवा की असेसमेंट भी जो है वो करते रहिएगा. And this would also help you in your research work as well, if you are targeting or focusing upon your research related to the organizational behavior context or even HRM context. So अब आप ये देखिए कि जो scores अभी हमारे सामने आई उनकी interpretation कैसे बन रही है. Now this is something very tricky I'm showing you. For example, let's look at absenteeism. And out of the research, ये research evidence पर based मैं बात आपसे कर रहा हूं, it is said that extraversion is positively related to absenteeism. Okay, the more the score of extraversion you have, it is a chance that you will be more absent. Okay, यहां पर मैं फिर से एक बात कोट कर दूं कि कोई भी absolute चीज नहीं है. Number 1. Number 2, it all depends. Number 3, person to person variations भी आ सकती हैं. लेकिन इसके बावजूद कीपिंग ऑल दीज 3 फैक्टर्स कांस्टेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सट्रोवर्जन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एब्सेंटिज्म. यहां पर हम ये कोरिलेशन की बात कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट देखिए, कंसेंसुअसनेस इज नेगेटिवली रिलेटेड टू एब्सेंटिज्म एंड देयर वाज नो डिफरेंस फाउंड बिटवीन रेशियल ग्रुप्स एंड दस रेशियल ग्रुप्स में कोई डिफरेंसेस हमें ना मिले एंड दस लेस एडवर्स इंपैक्ट, जो आप एचआरएम में डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से डिस्कस करते हो, एंड दस लेस एडवर्स इंपैक्ट व्हेन यूजिंग फॉर सिलेक्शन पर्पसेस कंपेयर टू कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट्स लाइक आईक्यू और द ईक्यू. तो अब हमने पर्सनैलिटी असेसमेंट्स में कंसेंसुअसनेस स्कोर, एक्सट्रोवर्जन स्कोर, इन सब चीजों को एब्सेंटिज्म के साथ रिलेट करके वो देखा कि इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे. इसी तरह एग्रीएबलनेस को देखिए. एग्रीएबलनेस के हवाले से वो कहता है कि नीडेड फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग टीम वर्क एंड गुड इंटरपर्सनल फैसिलिटेशन स्किल. तो अब अगर मेरा एक ऐसा जॉब डिजाइन है जिसमें कि मुझे टीम वर्क और गुड इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, तो आई विल बी लुकिंग फॉर द पीपल जिनकी के एग्रीएबलनेस की जो स्कोर होगी वो ज्यादा होगी. लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीएबलनेस इज नेगेटिवली रिलेटेड टू कैरियर सेटिस्फेक्शन. ओके, अब एक तरफ अगर मुझे टीम वर्क और गुड इंटरपर्सनल फैसिलिटेशन मिल रही है तो दूसरी तरफ कैरियर सेटिस्फेक्शन जो होगी वो रिड्यूस कर जाएगी बिकॉज इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड. इसी तरह एक्सट्रोवर्जन, मैं दोबारा से कोट कर रहा हूं, इट सेज दैट रिलेटेड टू पॉजिटिव अफेक्टिविटी एंड इंटरपर्सनल फैसिलिटेशन. यहां तक तो बात समझ में आ गई. और साथ वो क्या कह रहा है, पॉजिटिवली रिलेटेड टू सैलरी लेवल्स, प्रमोशंस एंड कैरियर सेटिस्फेक्शन. अब एग्रीएबलनेस का कॉन्टेक्स्ट और बात में लेकर चल रहा है और एक्स्ट्रावर्जन के बारे में हमें जो इन्वेस्टिगेशंस मिल रही हैं वो डिफरेंट हमें साइड दिखा रही हैं. एट द सेम टाइम हम एक तरफ कहते हैं कि कंसेंसुअसनेस जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेरिएबल है. आउट ऑफ द 5 बिग 5 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसेंसुअसनेस है. लेकिन यहां पर वो बात कर रहा है डार्क साइड ऑफ कंसेंसुअसनेस, और उसके बारे में वो क्या कह रहा है कि नॉट हेल्पफुल फॉर जॉब्स दैट रिक्वायर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्पॉन्टेनिटी और क्विक डिसीजन मेकिंग, और द पीपल विद द हायर लेवल्स ऑफ कंसेंसुअसनेस, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, but they suffer from analysis paralysis.
ओके अब कंसेंससनेस जो है वो लिंकअप कर गया एनालिसिस पैरालिसिस के साथ, which is not a good trait when you talk about creativity, innovation, spontaneity, and quick decision making. Why? Because the more consensuousness score you have, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एनालिसिस, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत से डब्ल्यूज जो है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, वो हर वक्त गर्दिश वो कर रहे होंगे. तो अब यहां से आप नजर लगाना शुरू कीजिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये जो एनालिसिस होते हैं, ये दीज आर नॉट जस्ट लाइक सरफेस थिंग्स. इसकी बहुत डीपर इंप्लीकेशंस हैं जो आगे चलकर हमें जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब एंगेजमेंट, जॉब बर्नआउट, जॉब एंजाइटी, इस तरह के बेशुमार फैक्टर्स के साथ ये सब कुछ लिंकअप कर जाएगा. इसी तरह देखिए ओपननेस टू एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको रिसर्च एविडेंस दिखा रहा हूं कि नीडेड फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी. अब वहां पर उसामा इज द राइट पर्सन टू बी हायर्ड. हमने जैसे डेफिनेशन बनाई थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एंड आई टोल्ड यू कि पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम. अब ये कहना तो बहुत आसान है, बट हु इज द राइट पर्सन, उसको इन्वेस्टिगेट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है. अगला पॉइंट देखिए ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कि इट इज सेड दैट मे बी प्रिडिक्टिव ऑफ क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी एंड सक्सेस इन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स. ओके, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमें बता रहा है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस नेगेटिवली रिलेटेड टू सैलरी लेवल्स ओरिएंटेशंस. ठीक है, आपकी सैलरी लेवल जो ऑब्टेन्ड है उसके साथ नेगेटिव कोरिलेशन रखता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस. इसी तरह डियर जरा न्यूरोटिसिज्म को देखिएगा, जिसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी में काउंट करते हैं, कि इमोशनल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू नेगेटिव अफेक्टिविटी, cope poorly with stress, and negatively related to career satisfaction. अब ये तमाम जो आपके सामने मैंने यहां पर ये पॉइंट्स कोट किए हुए हैं, इन सब के बैकएंड के ऊपर हमारे पास जो रिसर्च है उसके एविडेंसेस मौजूद हैं. और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं. आप कोई फर्दर एस्पेक्ट्स, मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग एस्पेक्ट्स को भी लेकर आ सकते हो. आप किसी और वेरिएबल्स के इफेक्ट को भी काउंट कर सकते हो कि किसी और वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट से क्या असरात मुरतब होंगे हमारे आउटकम्स के ऊपर. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो फील्ड है वो आपको इस तरीके से एक बहुत वास्ट वैरायटी प्रोवाइड करता है ऑफ रिसर्च, और आपके पास एक लातदाद वेरिएबल्स, लातदाद कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और बेशुमार ह्यूमन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कि जिनके साथ यू कैन प्ले एंड यू कैन फाइंड आउट कि कौन सी चीज किस तरह से कोरिलेटेड है और कौन सी चीज किस तरह से इन्वेस्टिगेट की जा सकती है. इस सारी डिस्कशन को अब हम एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं. Okay, now let's see how EQ and IQ are related with one another. Emotional quotient and intelligence quotient. Emotional quotient के ऊपर बहुत काम हो चुका है और बहुत काम होना बाकी भी है. और सबसे इंटरेस्टिंग जो वर्क मुझे इमोशनल क्वोशंट के हवाले से लगा, इट इज द वर्क ऑफ डैनियल गोलमैन, इज अ हार्वर्ड प्रोफेसर. और उसका जो काम है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया रिलेटेड टू द इमोशनल क्वोशंट. उसका एक आर्टिकल है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से. उस आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन आइडिया इन ब्रीफ. इसको मेरे साथ पढ़िए. इट सेज दैट व्हाट डिस्टिंग्विशेस ग्रेट लीडर्स फ्रॉम मेयरली गुड वंस, इट इजंट आईक्यू. ठीक है, ये सिर्फ आईक्यू नहीं है. ये किस तरह ये बात कर सकता है, इसके ऊपर अभी आपको मैं नेक्स्ट सेशन में डैनियल गोलमैन के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि डैनियल गोलमैन की जो सारी थ्योरी है वो कैसे डेवलप कर रही है. सो इट इजंट आईक्यू और टेक्निकल स्किल जो कि ग्रेट लीडर्स को दूसरे लीडर्स के साथ मुख्तलिफ कर रही है. इट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस. कौन सा लीडर कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस. So a group of 5 skills that enable the best leaders to maximize their own and their followers' performance. When senior managers at one company had a critical mass of EI capabilities, their decisions outperformed yearly earnings goals by 20%. अब वो 5 pillars जो हैं emotional quotient के, they are very interesting. The first thing is self-awareness. और मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, कि when you can claim that you are self aware, जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि knows one's strengths, weaknesses, one's drives and values and impact on others.
इस मकसद के लिए एक पूरी एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, जिस एक्सरसाइज में इट इज सेड कि यू हैव टू डू योर ओन स्वॉट एनालिसिस। आप अपनी जात का स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी जात की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, अपनी जात के अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को देखें। सो वो शख्स जो अपना एनालिसिस नहीं कर सकता, जो अपनी जात का कैथारसिस नहीं कर सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या इन्वेस्टिगेट करेगा? सो रिमेंबर कि सेल्फ अवेयरनेस इज द basic starting phenomena when you talk about emotional intelligence. Number 2, self-regulation. उसमें controlling और redirecting disruptive impulses and moods, ये चीज काउंट हो जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस कदर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो कितना है। ये जितनी भी ट्रेड्स हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इन तमाम ट्रेड्स के बारे में we have exercises, we have डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जिनसे कि इनको चेक, इनको इंप्रूव वो किया जा सकता है। बट नो डाउट हर शख्स की जो कैपेबिलिटी होगी, हर शख्स की जो कंपिटेंसीज होंगी, दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब सेल्फ रेगुलेशन इज बेसिकली controlling your moods and perspectives, and obviously that would be much related with the emotional labor as well, जिसमें कि आपकी लिमिट्स डिफाइंड हैं कि आप किस कदर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपने मूड्स और अपने इमोशंस को। सो इमोशनल लेबर इज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट, जबकि सेल्फ रेगुलेशन इज समथिंग रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ। सो अपनी इंपल्सेस को आप कंट्रोल करते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी परसेप्शंस, इन सब चीजों को, अपने स्टिमुलस, इन तमाम चीजों को आप किस कदर अंडर कंट्रोल वो लेकर आ सकते हो। इसी तरह इमोशनल क्वोशंट में वी हैव मोटिवेशन, जिसमें के रिलेशन अचीवमेंट फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में सबसे प्यारी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डूइंग समथिंग फॉर इट्स ओन सेक। ओके, सो अब आपके अंदर मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके मोटिवेशनल ड्राइव्स क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं विच कैन ट्रिगर यू फ्रॉम इनसाइड, आपके इंट्रिंसिक जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो कैसे फुलफिल हो रही हैं। सो इंट्रिंसिक पर्सपेक्टिव्स में मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स को देखना और अपनी मोटिवेशंस को पहचान कर अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन कैपेबिलिटी में लेकर आना, that is something which is part of your emotional intelligence. Because at the same time, when there are so many demotivations around you, people, particularly the leaders, are the people कि जिनकी motivational perspective वो उस वक्त भी, उस dark side, उस dark time में भी वो हमेशा positive रहती हैं। So motivation में आपको अपने सेल्फ मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव्स को वो देखना है। इसी के साथ साथ अगर हम एम्पैथी की बात करें तो आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस आई बिलीव कि एम्पैथी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और कोई नहीं होगी, विच इज टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स इमोशनल मेकअप। और यहां पर याद रखिएगा कि यू नीड नॉट टू बी सिंपैथेटिक, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। तो एम्पैथी को लेकर आइए, जिसमें कि आपकी केयरिंग एटीट्यूड, आपका केयरिंग कंसर्न, ये चीज काउंट की जा रही है। आप दूसरों का ख्याल रखो कि उनके हकूक क्या हैं, उनकी नीड्स वांट्स क्या हो सकती हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन हर्ट अदर्स। तो सेल्फ सेंटर्ड होने की बजाय आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से, दूसरों के ग्लासेस से देखना है, आपको दूसरों के व्यू पॉइंट से भी चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए। तो ये चीजें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का इंटीग्रल पार्ट हैं। So far we have gone through self awareness, self regulation, motivation, empathy, और उसके साथ साथ we'll be focusing upon social skill, जिसमें के building rapport with others to move them in desired direction, इसकी हम बात कर रहे हैं। हमारा जूम सेशन टाइम यहां पर खत्म हो रहा है, काइंडली जल्दी से अगला जूम सेशन ज्वाइन कीजिए और वहां पर हम डैनियल गोल्डमैन के कुछ क्लिप्स भी देखेंगे और फर्दर अपनी डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे।